So hello all, I welcome you all in our next video of Prayag Public School, and this video is for class 8th, right? And today we are going to start with lesson 7, that is a boy's best friend, right? So if you remember in our last video we have gone through a poem, that is lesson 6 if, right? Where we have completed that poem, right? And I also told you to go through the question and answer of that particular chapter, right? So today we are starting with lesson 7, a boy's best friend. So let us talk about a little bit about this particular story. A boy's best friend is a story between or a story about robotic things, right? So over here, a boy who was born on moon, whose name is Jimmy, right? So he's a boy who was born on moon, and his name is Jimmy, and he's having a friend. Uh, uh, the story which is telling, or the name of the story which is expressing a boy's best friend. So who is that boy's best friend? The best friend of that boy is a robotic dog, whose name is Robot, right? So let's study the story. Let's go through the story, and we will figure it out what the story is all about, right? So let's proceed, class. So let's start. We are starting with lesson 7, a boy's best friend. So a boy's best friend is written by Isaac Asimov, right? So he is the writer who has written this particular story. This is for science fiction lovers, right? So this story is all about science fiction lovers. Science fiction means it is a story, or Isaac Asimov is a writer or is an author who write about mostly about science, technologies, or mechanical and all these things, right? This story is related to robots and friendship between robot and human beings. So this is a story which is related, or which is highlighting a friendship between robots and human beings, right? Its setting is outside Earth. Now like I just told you, the Jimmy, who who's a boy born on moon, right? So the whole story has its setting outside the Earth, right? So let's start further. A boy's best friend, right? So we are starting the story. Let's proceed, class. Mr. Anderson said, "Where is Jimmy, dear?" "Out on the crater," said Mrs. Anderson, right? So there is a, now here two characters are there, Mr. Anderson and Mrs. Anderson, right? So Mr. Anderson is asking, where is Jimmy, dear? So Jimmy is their son, right? So where is Jimmy, dear? Now Mr. Anderson is asking Mrs. Anderson, or from Mrs. Anderson, that where is Jimmy? Out on the crater. Crater means बाउल शेप पिट, एक गड्ढा जो कि बाउल की तरह रहता है. मतलब कई बार आपने देखा होगा गड्ढा होता है वो बाउल की तरह होता है ना, कि एक कटोरी की जैसे गड्ढा. तो उसी तभी मिसेस एंडरसन बोलती हैं कि हाँ वो बाहर है गड्ढे में, ठीक है. आउट ऑन द क्रेटर, सेड मिसेस एंडरसन. ही विल बी ऑल राइट. रोबोट इज़ विद हिम. डिड इट अराइव? सो मिसेस एंडरसन फर्दर बोलती हैं कि वो एकदम सही है, एकदम मतलब कोई परेशानी वाली बात नहीं है. ही इज़ वेरी, और ही इज़ टोटली ऑल राइट. रोबोट इज़ विद हिम. सो हेयर रोबोट इज़ दैट मैकेनिकल डॉग, राइट, और रोबोटिक डॉग. रोबोट इज़ विद हिम, और रोबोट उसके साथ है. डिड इट अराइव? क्या वो आ गया है? Yes, it is at the. Now, did it arrive was the question which was asked by Mr. Anderson, right, from Mrs. Anderson. Now she is giving the reply with yes, कि हाँ वो वहाँ पे आ गया है. It is at the rocket station going through the test. Now she's telling that robot is now at the rocket station and is going through some test. Actually, I can hardly wait to see it myself. नाउ मिसेस एंडरसन इज सेइंग कि मैं हार्डली ही, मतलब बहुत लाइक आई कैन हार्डली वेट टू सी इट माई सेल्फ, और मैं उसको देखना चाहती हूँ. मतलब मैं वेट नहीं कर सकती ज़्यादा उसको देखने के लिए. एंड टू whom ही wanted टू से,
to see, she wanted to whom she wanted to see, she wanted to see a real dog, because over here in this particular paragraph now Mr. Anderson and Mrs. Anderson is talking about a real dog, not that robotic dog, but a real dog. I haven't really seen one since I left Earth 15 years ago. राइट. सो नाउ मिसेस एंडरसन इज सेइंग कि तब से मतलब 15 साल हो गए जब मैंने अर्थ को छोड़ा, ठीक है, या अर्थ के अलावा मैं यहाँ मून पे रहने लगी, तब से मैंने किसी को भी मतलब कोई रियल डॉग नहीं देखा है. यू कांट काउंट फिल्म्स, राइट, सीन ऑन द स्क्रीन ओनली. सो यू कांट काउंट फिल्म्स का मतलब क्या है, सीन ऑन द स्क्रीन ओनली. अब कई बार जैसे फॉर एग्जांपल हम बहुत सी ऐसी चीज़ें जो लाइव नहीं देखा है हमने कभी, वो हम फिल्म में देखते हैं, ठीक है. तो यहीं पे या फिल्म या मूवीज़ या पिक्चर में देखते हैं या पिक्स में देखते हैं. तो यहाँ पे मिसेस एंडरसन का कहना है कि मैंने अभी तक कोई लाइव डॉग, एक एक्चुअल डॉग नहीं देखा है जब पिछले 15 सालों से. और फर्दर मिस्टर एंडरसन को कहती हैं कि तुम उनके बारे में अब नहीं बोल सकते हो जो मैंने पिक्चर या मूवीज़ में देखी है, ठीक है. मतलब उन कुत्तों को या उन डॉग्स को काउंट नहीं तुम करो जिनको मैंने मूवीज़ या स्क्रीन पे देखा है. मतलब मैं रियलिटी की बात कर रही हूँ. जिमी हैज़ नेवर सीन वन, सेड मिसेस एंडरसन. और मिसेस एंडरसन भी यही कहती है कि जिमी ने भी आज तक एक भी रियल डॉग नहीं देखा है. बिकॉज ही इज़ मून बॉर्न एंड कांट विजिट अर्थ. That is why I am bringing one here. I think it is the first one ever on the moon, right? और फिर यहाँ पे ये कौन बोल रहा है, मिस्टर एंडरसन बोल रहे हैं. किससे, मिसेस एंडरसन से. कि बिकॉज जब मिसेस एंडरसन ने ये बोला कि जिमी ने भी एक बार भी अभी कभी भी एक एक्चुअल डॉग या रियल डॉग को नहीं देखा है, तो वहाँ पे मिस्टर एंडरसन भी बोल रहे हैं कि हाँ उसने भी नहीं देखा है क्योंकि ही वॉज अ मून बॉर्न, क्योंकि उसका जन्म कहाँ हुआ था, मून पे हुआ था. और वो कभी भी अर्थ पे नहीं गया है या नहीं रहा है. दैट्स वाई आई एम ब्रिंगिंग वन हेयर. और इसीलिए मिस्टर एंडरसन बोलते हैं कि इसी वजह से मैं एक रियल डॉग या एक्चुअल डॉग यहाँ पे ला रहा हूँ. आई थिंक इट इज़ द फर्स्ट वन एवर ऑन द मून. और वो आगे कहते हैं कि मेरे हिसाब से ये पहला एक ऐसा एक्चुअल जानवर होगा या एनिमल होगा जो कि मून पे आएगा. इट कॉस्ट एनफ, सेड मिसेस एंडरसन विद अ स्मॉल साई. साई मीन्स डीप ब्रीथ, ठीक है. अब उन्होंने बोला, मिसेस एंडरसन ने बोला कि हाँ वहाँ से अर्थ से कोई चीज़ मंगाना यहाँ पे, कहाँ पे, मून पे, बहुत ज़्यादा कॉस्टली है. मेंटेनिंग रोबोट इज़न्ट चीप ईदर, सेड मिस्टर एंडरसन. फिर मिस्टर एंडरसन बोलते हैं कि रोबोट को मेंटेन करना भी बहुत ज़्यादा आसान नहीं है, क्योंकि वो क्योंकि रोबोट जो है वो एक रोबोटिक डॉग है, ठीक है, मैकेनिकल डॉग है. तो उसको भी मेंटेन करके रखना बार बार, क्योंकि मशीन्स वाली चीज़ों को बहुत संभाल के हम रखते हैं, क्योंकि अगर वो ख़राब हो जाती है फिर उनके मेंटेनेंस के चार्ज बहुत ज़्यादा होते हैं. तो इसीलिए मिस्टर एंडरसन ने कहा कि मेंटेनिंग रोबोट इज़न्ट चीप ईदर. मतलब रोबोट को मेंटेन करने के लिए या मेंटेन करना भी आसान बात नहीं है. लेट प्रोसीड फॉर द क्लास. जिमी वॉज आउट ऑन द क्रेटर एज हिज मदर हैड सेड, राइट. सो जैसे कि उसकी मम्मी ने या उसकी मदर ने, मिसेस एंडरसन ने मिस्टर एंडरसन को बताया था कि जिमी कहाँ पे है, क्रेटर में, मीन्स आउटसाइड क्रेटर मीन्स स्मॉल बाउल शेप पिट, ठीक है, गड्ढा. तो उसी गड्ढे पे है, ये उन्होंने बताया था. बाय अर्थ स्टैंडर्ड्स ही वॉज स्पिंडली बट रैदर टॉल फॉर 10 years old. अब बाय अर्थ स्टैंडर्ड्स मतलब लेवल, क्योंकि वो जो जिमी है अगर उसकी बात करें तो वो कहाँ पे पैदा हुआ था, मून पे. तो इसलिए अगर अर्थ से कंपेयर करें, क्योंकि अब वो कहाँ पे आ रहा था, अर्थ पे आ रहा था, ठीक है. तो अर्थ के कंपैरिजन की अगर से कंपैरिजन करें अगर जिमी की स्टैंडर्ड को या जिमी के इन्वायरमेंट को या जो एटमॉस्फेयर वहाँ उसने अडॉप्ट कर लिया था मून पे रहते रहते, तो अब अगर हम अर्थ से कंपेयर करें तो वो क्या था, ही वॉज स्पिंडली मीन्स टॉल एंड थिन, ठीक है. ही वॉज स्पिंडली बट रैदर टॉल फॉर 10 years old. वो एकदम पतला और लंबा लड़का था, ठीक है, बट रैदर टॉल फॉर 10 years old, ठीक है. और लगभग 10 साल के किसी भी बच्चे के लिए वो बहुत बड़ा था. हिज आर्म्स एंड लेग्स वेर लॉन्ग एंड
एजाइल मीन्स क्विक मूविंग, और उसके जो आर्म्स थे मतलब बाहें थी और पैर थे वो बहुत ज़्यादा बड़े थे, और एजाइल मीन्स क्विक मूविंग मतलब तुरंत तुरंत बहुत तेज़ी से वो चला करता था। ही लुक्ड थिकर एंड स्टबियर मीन्स अगेन थिकर, सो ही लुक्ड थिकर एंड स्टबियर विद हिज स्पेस सूट। अब क्योंकि वो मून पे रहने वाला था, और आप जानते हो जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो जब जाते हैं तो वो स्पेस सूट पहनते हैं, ठीक है, और मास्क बहुत बड़ा सा वो हेलमेट जैसा कुछ लगाते हैं, देन दे वियर ऑल दो स्पेस शूट सो दैट दे शुड नॉट बी हैविंग एनी प्रॉब्लम, एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम्स इन इन द स्पेस और in the universe, right? So due to his space suit, the Jimmy looked thicker and very stubbier means a very like who is very thick and having a lot of it means that having a lot of things around his body, right? Spacesuit on, but he could handle the lunar gravity as no earth boy human being could, right? So now he could handle the lunar gravity. Lunar means moon gravity. So but he could not but he could handle the lunar gravity. तो वो जैसा भी था, चाहे वो पतला था और स्पेस शूट की वजह से वो मोटा भी लग रहा था, टॉल था, क्विक मूविंग था, ठीक है, जो भी क्वालिटीज़ थी इस पर्टिकुलर जिमी में, ठीक है, वो लूनर ग्रेविटी को अब्जॉर्ब कर रहा था मतलब कि वो बहुत एकदम वहाँ पे एडजस्ट कर गया था, कहाँ पे, मून पे, और उसकी लूनर एक्टिविटी जो ग्रेविटी थी वो भी उसको अफेक्ट नहीं कर रही थी, क्योंकि आप जानते हो कि अर्थ के कंपैरिजन में मून की जो ग्रेविटी होती है, ठीक है, वो 1/6 आई थिंक होती है, राइट? सो इस वजह से वहाँ पे उसने बहुत अच्छे से एडजस्ट कर लिया था इस जिमी ने अपने आप को, ठीक है, जो कि किसी भी अर्थ बॉर्न ह्यूमन बीइंग के लिए, जो अर्थ पे पैदा हुए ह्यूमन बीइंग के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो इतनी जल्दी और इतने अच्छे तरीके से मून की ग्रेविटी पे मून की ग्रेविटी के साथ अपना एडजस्टमेंट कर पाए। His father couldn't begin to keep up with him when Jimmy stretched his legs and went into the kangaroo hop. Right? अब यहाँ की बात क्या है? To keep up with मतलब keep speed with, ठीक है, तेज़ी से साथ में चलना, और stretched means spread। तो अगर मैं जिमी और जिमी के फादर की बात करूँ, यहाँ ऑथर बोल रहे हैं, तो उसके फादर जो हैं उसको उसके साथ चलने में या दौड़ने में जीत नहीं पाते थे, मतलब उससे पीछे रह जाते थे, ठीक है। कब? जब जिम्मी की चलने की बात आती थी, जब वो दौड़ने की बात आती थी, तो वो अपने पैरों को फैलाता था, और जैसे कंगारू हॉप करते हैं ना, हॉप करके आगे बढ़ते हैं उछल के, उसी तरीके से वो चलता या उछलता हुआ चलता था, और जो कि उसके फादर, जिमी के फादर को उसको पकड़ पाना बहुत मुश्किल था या मुश्किल रहता था। The outer side of the crater sloped southward, and the earth, which was low in the southern sky, was nearly full, so that the entire crater slope was brightly lit. The outer side of the crater, जो crater मतलब जो pit था, जो गड्ढा था, उसका जो outer side था वो sloped southward था, ठीक है, स्लोप मतलब स्लैंट, मतलब थोड़ा सा साउथवर्ड की तरफ तिरछा था, ठीक है। एंड द अर्थ विच वॉज लो इन द सदर्न स्काई, और जो अर्थ था वो भी दूर थोड़ा सा उसी स्काई में, क्योंकि ये मून पे हैं अभी, तो मून से ये देख रहे थे कि अर्थ भी वहाँ सदर्न स्काई में इट वॉज विजिबल, द अर्थ वॉज विजिबलिंग इन द सदर्न स्काई, ठीक है, वॉज नियरली फुल, पूरी तरीके से वो एकदम सही एकदम अच्छे से दिख रहा था। द अर्थ वॉज विजिबलिंग फुल एंड ब्राइट, so that the entire crater slope was brightly lit, and just because of the earth light, the light that the earth was having, the planet earth was having, it was totally reflecting upon that crater, right, and it was brightly lit, और वो क्रेटर पे पूरी तरीके से अर्थ की लाइट आ रही थी, मतलब उस मून पे आ रही थी, तो मून पे आने का मतलब है क्रेटर पे भी आ रही थी, मतलब उस गड्ढे में भी पहुंच रही थी, और वो गड्ढा पूरी तरीके से चमक रहा था, मतलब उस आसानी से अच्छे से दिख रहा था। सो लेट प्रोसीड फर्दर क्लास। द स्लोप वॉज अ जेंटल वन, एंड इवन द वेट ऑफ द स्पेसशूट couldn't keep Jimmy from racing up it in a floating hop that made the gravity seem non-existent, right?
द स्लोप वॉज अ जेंटल वन, जेंटल मीन्स वेरी प्लेजेंट, जो स्लोप था मतलब जो ढलान थी वो भी एकदम सही थी, ठीक है, बहुत ज़्यादा चलने या दौड़ने में बहुत ज़्यादा टफ नहीं थी या बहुत ज़्यादा रफ नहीं थी। एंड इवन द वेट ऑफ द स्पेस सूट कुडेंट कीप जिमी फ्रॉम रेसिंग अप, ठीक है, और जो स्पेस सूट जिमी ने पहना हुआ था उसकी वजह से या उसके होते हुए भी जिमी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती थी दौड़ने में। फ्रॉम रेसिंग अप एट इन अ फ्लोटिंग हॉप, फ्लोटिंग मीन्स स्मूथली, ठीक है, उसको दौड़ने में, भागने में, उछल उछल के चलने में उस स्पेस सूट पहने होने के बावजूद उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती थी। वो आसानी से दौड़ रहा था, चल रहा था और उछल रहा था। दैट मेड द ग्रेविटी सीम नॉन एग्जिस्टेंट, और ऐसा लग रहा था कि ग्रेविटी वहाँ पे है ही नहीं। Come on, Robert, he shouted. Now, who is saying? Jimmy is saying, कि come on, Robert. Robert is his robotic dog, right? Robert, which could hear him by radio, जो कि उसको अब रोबोट जो कि उसको किस तरीके से सुनता था, एक रेडियो के मीडियम से, ठीक है, थ्रू अ रेडियो और बाय द हेल्प ऑफ अ रेडियो, बिकॉज ही वॉज अ रोबोटिक डॉग. स्क्वीड एंड बाउंडेड आफ्टर हिम. स्क्वीड मीन्स टू मेक अ साउंड. अब क्योंकि वो रोबोटिक साउंड था पर सुन सकता था, जैसे एक रोबोट होता है, सुन सकता है, इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर सकता है, देख सकता है, भाग सकता है, चल सकता है, एक्शंस कर सकता है, तो वैसे ये भी रोबोटिक डॉग जिसका नाम रोबोट था, वो भी जब उसने सुना अपनी रेडियो के हेल्प से कि जिमी ने उसे आवाज़ लगाया, तो वो भी कोई एक पर्टिकुलर साउंड प्रोड्यूस करके उसने इंस्ट्रक्शन दिया. इंस्ट्रक्शन मीन्स रिप्लाई दिया. स्क्वीड मीन्स टू मेक अ साउंड एंड बाउंडेड मीन्स लॉन्ग जंप, और तुरंत उसके पीछे पीछे, जैसे जिमी लॉन्ग जंप लगा के आगे घूम रहा था, टहल रहा था, एंजॉय कर रहा था, उसने भी लॉन्ग जंप लगाना, किसने, रॉबर्ट ने भी उसके पीछे पीछे लॉन्ग जंप लगाना शुरू कर दिया. लेट प्रोसीड फर्दर क्लास. जिमी एक्सपर्ट दो ही वॉज couldn't outrace रॉबर्ट. ठीक है, अब जिमी की अगर बात करें तो एक्सपर्ट था, बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट था, उसको हर चीज़ की नॉलेज थी, उस खासकर दौड़ने, भागने की, उछलने की, कूदने की, सब चीज़ की उसको नॉलेज थी. बावजूद इसके कि उसने इतना हैवी और थिकर स्पेस सूट पहना था, बट रोबोट को वो हरा नहीं पाता था. अगर जहाँ तक ही रोबोट की बात आती थी, क्योंकि रोबोट क्या था, क्योंकि जिमी अभी भी मून पे भले ही था वो, बट ही वॉज अ इवन दो ही वॉज अ मून बॉर्न, बट ही वॉज अ ह्यूमन बींग. बट रोबोट, अगर हम रोबोट की बात करें, ही वॉज टोटली अ रोबोटिक डॉग, राइट, मैकेनिकल और मशीन डॉग. सो जिमी भले एक्सपर्ट था, पर रोबोट को हरा पाना उसके लिए बहुत मुश्किल था. आउटरेस मीन्स बीट, पर वो रोबोट को हरा नहीं पाता था. विच डिडंट नीड अ स्पेस सूट, जिसके पास कोई भी स्पेस सूट जैसी कोई चीज़ नहीं थी. किसके पास, रोबोट के पास. जैसे जिमी पहनता था स्पेस सूट वहाँ पे सर्वाइव करने के लिए, वैसे रोबोट के लिए कोई भी स्पेस सूट नहीं था. एंड हैड 4 legs एंड टेंडॉन्स ऑफ स्टील, राइट, और जिसके पास 4 पैर थे और टेंडॉन्स मीन्स टिश्यू, और जो उसके स्टील से वो टिश्यूज से जुड़े हुए थे, राइट. What do you think Robert is? Now here the writer is asking, what do you think the robot is? So Robert was Jimmy's friend. No, he was not Jimmy's friend. Jimmy's brother? No, he was not Jimmy's brother. Jimmy's dog? Yes, he was Jimmy's dog. Why? Because just about this question, in the last line of the above paragraph, you can see 4 legs लिखा हुआ है. तो 4 legs का मतलब क्या हुआ? That Robert was Jimmy's dog. Robert sailed over Jimmy's head, somersaulting and landing almost under his feet, right. So जैसे उसने जिमी ने अभी आवाज़ लगाई थी कम ऑन करके रॉबर्ट को, तो रॉबर्ट भी उसके पीछे उछल उछल के चलने लगा. एंड इट वॉज सेलिंग मीन्स इट वॉज फ्लोटिंग, मीन्स इट वॉज द रोबोट दैट रोबोटिक डॉग और द मैकेनिकल डॉग वॉज सेलिंग, मीन्स ही वॉज फ्लोटिंग इन द ईयर. वो इतना जंप ज़्यादा कर रहा था कि ऐसा लग रहा था कि वो हवा में ही स्विंग कर रहा है, मतलब उड़ रहा है. और जंप कर करके उसके सर के ऊपर तक वो जंप कर रहा था, किसके, जिमी के. तो जब वो जंप कर रहा था, मतलब जब एक बार आ रहा था वो टच कर रहा था, और टच मतलब अर्थ
लैंड को जब वो टच कर रहा था, और लैंड को टच करने के बाद जब वो ऊपर उठ रहा था, तो वो कितनी ऊपर तक जा रहा था, वो जिमी के सर के ऊपर तक जा रहा था, उछल उछल के। समर सॉल्टिंग एंड लैंडिंग ऑलमोस्ट अंडर हिज फीट, बॉडी रोल ओवर। अब यहाँ पे समर सॉल्टिंग का मतलब है बॉडी रोल ओवर। आपने देखा होगा कि कई बार जैसे मूवीज़ में या रियल एक्शन में या कभी कोई रियलिटी शो में आपने देखा होगा कि खासकर डांस के टाइम में जो डांसर्स होते हैं वो किस तरीके से बॉडी में ही अपनी बॉडी को पूरा रोल ओवर करते हैं, और फिर उसके बाद अपने पैरों पे ही आकर खड़े हो जाते हैं, राइट। तो वो होता है बॉडी रोल ओवर का मतलब होता है समर सॉल्टिंग, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पे कहने का मतलब है कि रोबोट क्या कर रहा था, लैंड से उठ रहा था, उछल रहा था, और पूरी तरीके से उसकी अपनी बॉडी को क्या कर रहा था, रोल कर रहा था, ठीक है। रोल कर रहा था मतलब पहले जैसे सर ऊपर है, फिर वो इस तरीके से उछल रहा था कि पैर ऊपर जा रहा था, फिर एक होल राउंड लग रहा था, और फिर वो नीचे आके अपने पैरों पे खड़ा हो जा रहा था। कहाँ पे? लैंड पे। एंड लैंडिंग ऑलमोस्ट अंडर हिज फीट, ठीक है। तो पूरी एक रोल ओवर कर करके वो आगे बढ़ रहा था, और जब वो हवा में जा रहा था तो ऐसे लग रहा था कि वो उड़ रहा है। फिर उसी हवा में रहते हुए वो अपने बॉडी को रोल कर रहा था, एंड देन ही वॉज लैंडिंग onto the land. Don't show off, Robert said Jimmy, and stay in sight. ठीक है। तो यहाँ पे जिमी ने बोला रॉबर्ट से कि शो ऑफ मत करो, मतलब प्रिटेंड मत करो कि तुम्हें बहुत कुछ आता है, या तुम ऐसे एक्शंस या स्टंट तुम कर लेते हो, तो तुम शो ऑफ मत करो, ठीक है। और मेरे विजन में रहो। साइड मतलब विजन, मतलब मेरे आँखों के सामने ही रहो, इधर उधर मत जाओ। रॉबर्ट स्क्वीड मीन्स टू मेक साउंड और वॉइस, राइट। सो रॉबर्ट स्क्वीड अगेन, वो फिर से अपनी एक डिफरेंट आवाज़ या अपने ओन लैंग्वेज में एक आवाज़ निकालता है, जो कि रोबोटिक लैंग्वेज रही होगी, ठीक है। तो उस लैंग्वेज को उस रोबोटिक लैंग्वेज में आवाज़ निकालता है, ठीक है। किसको सिग्नल देने के लिए? जिमी को सिग्नल देने के लिए। द स्पेशल स्क्वीक दैट मेंट येस, और ये एक तरीके से स्पेशल आवाज़ थी। स्क्वीक मीन्स आवाज़, एक स्पेशल तरीके से आवाज़ वो निकाला था उसने, जिसका मतलब होता था कि हाँ, मतलब वो जिमी का कहना एक हिसाब से मान रहा है कि ठीक है, तुम जो कह रहे हो कि बहुत ज़्यादा मैं इस तरीके से हरकतें ना करूं, बहुत ज़्यादा जंप ना करूं, और जो मैं हरकतें कर रहा हूँ, एक्शन कर रहा हूँ, रोल ओवर कर रहा हूँ, वो ना करूं। तो उसके लिए वो स्पेशल साउंड निकालता है, जिसका मतलब होता है येस। दैट मीन्स I am not going to do this thing again, right? So let's proceed further, class. I don't trust you, you faker, shouted Jimmy. अब जब उसने बोल दिया था कि हाँ, यस बोल दिया था रॉबर्ट ने कि हाँ ठीक है, अब तुम जो कह रहे हो मैं तुम्हारा कहना मानूंगा, तब तक जिमी ने क्या बोला कि मैं तुम पे विश्वास नहीं करता। यू फेकर मीन्स अनट्रूथफुल, राइट। जो सच नहीं बोलता उसे हम क्या बोलते हैं? फेकर। shouted Jimmy, and up he went in one last bound that carried him over the curved upper edge of the crater wall and down into the inner slope. और फिर से एक बार वो उस क्रेटर मतलब उस गड्ढे के नीचे से शुरू करता है और ऊपर तक जाता है, और फिर ऊपर से लेकर के नीचे फिर आ जाता है। एंड अप ही वेंट इन वन लास्ट राउंड, और फिर एक लास्ट राउंड के लिए वो जाता है, एंड दैट कैरीड हिम ओवर द कर्व्ड अपर एज ऑफ द क्रेटर वॉल। जो क्रेटर वॉल थी उसके ऊपर तक, मतलब जहाँ तक जैसे बाउल होता है, तो बाउल क्या होता है? कटोरी होती है। कटोरी का जो सरफेस एरिया होता है, अगर हम सरफेस एरिया को छोड़ करके ऊपर की बात करें तो ऊपर चारों ओर क्या होता है? काइंड ऑफ अ वॉल होती है, तो और एज होता है उसका, ठीक है। क्योंकि उसके बाहर चीज़ें अगर हम उसमें पोर कर रहे हैं, मान लो कोई वाटर पोर कर रहे हैं, तो अगर हम पूरा भर देंगे तो वो जब अगर पूरा एकदम भरते जाएंगे तो थोड़ी देर बाद क्या होगा? वो मतलब बाहर पानी बहने लगेगा। क्यों? क्योंकि जो उसका आउटर कर्व्ड पार्ट है वो एक लिमिटेड है। तो उसी तरह उस क्रेटर में भी था कि उसका जो कर्व्ड एरिया था वो उस वॉल तक जाता है, मतलब नीचे से शुरू करके कौन? जिमी ये जंप कर करके और एकदम ऊपर लास्ट एड्ज तक, वो अपर एड्ज तक
जो क्रेटर वॉल था, जो क्रेटर की वो वॉल थी, मतलब जो चारों ओर से दीवार थी उस क्रेटर की, उसके अपर एड्ज तक जाता है एंड डाउन इनटू द इनर स्लोप, और फिर उसके बाद उसी स्लोप से, मतलब जो जो स्लोप थी, मतलब जो ढलान थी, उसी ढलान से फिर एकदम नीचे आ जाता है. द अर्थ सैंक बिलो द टॉप ऑफ द क्रेटर वॉल एंड एट वंस इट वॉज पिच्ड डार्क अराउंड हिम. राइट. अब धीरे धीरे अर्थ जो था, जो पृथ्वी थी, वहाँ पे जो दिख रही थी अभी थोड़ी देर पहले, वो डूब जाती है, मतलब सिंक कर जाती है. ठीक है. सैंक मतलब टू सिंक डाउन. द अर्थ सैंक बिलो एंड द टॉप ऑफ द क्रेटर. अब जो क्रेटर, क्योंकि अब अभी तक लाइट किससे मिल रही थी, जो जो वहाँ पे मून पे, जो जहाँ पे ये जिमी और रॉबर्ट प्रैक्टिस कर रहे थे या उछल कूद कर रहे थे, वो कहाँ कर रहे थे, एक क्रेटर में. और वो क्रेटर कहाँ पे है, मून पे है. और अभी तक लाइट, जो कि क्रेटर लाइटली मतलब लिट कर रहा था, अच्छे से जल रहा था, उसमें वहाँ पे रोशनी पहुँच रही थी पूरे अंदर तक उस क्रेटर में, वो किसकी वजह से, अर्थ की वजह से. पर क्योंकि अब अर्थ जो है वो डूब चुका था, मतलब स्पिन कर कर के आगे बढ़ गया था, तो इस वजह से अब वो अर्थ वहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा था, और जिसकी वजह से अब लाइट पूरी तरीके से आना बंद हो गई थी. So the earth sank below the top of the crater wall and at once it was pitch dark. Pitch dark means too dark. Around him, उसके आसपास, जिमी के आसपास या जिमी और रॉबर्ट दोनों के आसपास क्या हो गया था, डार्क हो गया था, पूरा एकदम अंधेरा छा गया था. A warm friendly darkness that wiped out the difference between ground and sky except for the glitter of stars. Glitter means shining. Wiped out means removed. अ वार्म फ्रेंडली डार्कनेस. ठीक है. और हमेशा की तरह, फ्रेंडली मतलब जैसे हमेशा की तरह अर्थ के चले जाने पे या ना होने पे जो जैसा डार्क हमेशा अंधेरा रहता था मून पे, वैसा अंधेरा वहाँ पे हो गया था. तो अब डिफरेंस नहीं पता चल पा रहा था किसमें, ग्राउंड और स्काई में. जैसे हमारे यहाँ भी रात हो जाती है तो ऊपर भी देखो स्काई में भी अंधेरा, और नीचे अगर देखो तो नीचे भी अंधेरा ही रहता है. ठीक है. जब तक कि कोई लाइट ना हो. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कहीं ऐसी जगह जा रहे हो जहाँ पे स्ट्रीट लाइट या लैम्प या आपके हाथ में टॉर्च जैसी चीज़ें नहीं हैं, तो क्या होगा, आपको देखने में बहुत परेशानी होगी. ठीक है. क्यों? क्योंकि ऊपर अगर आप देखोगे तो अंधेरा है, नीचे सड़क पे भी अंधेरा है. तो वैसे कुछ यहाँ पे भी हो गया था, सिवाय उनके उन स्टार के अलावा वहाँ पे पूरी तरीके से डार्क हो गया था, मतलब पूरी तरीके से अंधेरा हो गया था, सिवाय उन कुछ तारों के जो टिमटिमा रहे थे, मीन्स शाइन कर रहे थे वहाँ पे. सो लेट प्रोसीड फर्दर क्लास. एक्चुअली जिमी वॉजंट सपोज टू एक्सरसाइज लॉन्ग अलॉन्ग द डार्क साइड ऑफ द क्रेटर वॉल. सो जिमी जो था वो उसकी एक्चुअली बात ये थी कि जिमी को एक्सरसाइज करने के लिए बिल्कुल भी मना किया गया था जब अंधेरा हो जाए. ठीक है. द ग्रोन अप सेड इट वॉज डेंजरस बट दैट वॉज बिकॉज दे वर नेवर देयर. ठीक है. अब ग्रोन अप्स, यहाँ पे ग्रोन अप्स का मतलब है जो ये जिमी और ये रॉबर्ट को कहा जा रहा है. ये ग्रोन अप्स यहाँ पे किसको रेफ़र कर रहा है, जिमी और रॉबर्ट को. सो द ग्रोन अप सेड इट वॉज डेंजरस. तो दोनों ने कहा कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्या है, डेंजरस है. क्यों? क्योंकि अंधेरा भी हो गया था, और उस गड्ढे में जहाँ पे वो उछल कूद कर रहे थे और दे वर प्रैक्टिसिंग, राइट. सो इट वॉज डेंजरस बट दैट वॉज बिकॉज दे वर नेवर देयर. और क्योंकि उनको इसलिए डेंजरस लग रहा था क्योंकि जब भी अंधेरा होता था तो वो वहाँ पे जाते ही नहीं थे, इसलिए उनको लगता था कि यहाँ पे डेंजर है. द ग्राउंड वॉज स्मूथ एंड क्रंची मीन्स रफ, राइट. सो वहाँ का जो ग्राउंड था वो बहुत स्मूथ था और क्रंची था, मतलब रफ था. एंड जिमी न्यू द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ एवरी वन ऑफ द फ्यू रॉक्स. और जिमी को वहाँ के हर एक रास्ते के बारे में, अगर उस क्रेटर की बात करें, वहाँ के हर एक रास्ते के बारे में और वहाँ की लोकेशन के बारे में. लोकेशन मतलब वो ज़मीन की लोकेशन कैसी है, कहाँ पे फ्लैट है और कहाँ पे अप्स एंड डाउन्स है उस पर्टिकुलर लैंड पे. तो उसको हर एक चीज़ की, हर एक रॉक्स मतलब पत्थरों की, हर एक पत्थरों की जानकारी थी कि कौन सा पत्थर कितना बड़ा कितना छोटा कहाँ पे रखा हुआ है, राइट. इवन दो व्हेन इट वाज टोटली डार्क. लेट प्रोसीड फर्दर क्लास. Beside how could it be dangerous racing? Besides, how could it be dangerous racing through the dark
when Robert was right there with him, right? अब बजाय इसके, मतलब बजाय इन सब के जो अभी हमने पढ़ा कि वहाँ पे डार्क हो जाता था, तो इस वजह से जिमी वॉज इंस्ट्रक्टेड नॉट टू डू हिज ट्रेनिंग्स और ऑल दिस स्टफ, राइट? सो उन सब के अलावा यहाँ पे डेंजरस होने का कोई सवाल ही नहीं था, क्योंकि कौन था उसके साथ? जिमी के साथ, रॉबर्ट के साथ। इसका मतलब है यहाँ पे ऑथर का कहना ये है कि मुझे नहीं लगता कि वहाँ कभी भी उसके साथ जिमी के साथ कोई भी डेंजर था। क्यों? क्योंकि उसके साथ हमेशा कौन रहता था? रॉबर्ट। सो हाउ कुड इट बी डेंजरस रेसिंग थ्रू द डार्क व्हेन रॉबर्ट वाज राइट देयर विद हिम, बाउंसिंग अराउंड एंड स्क्वीकिंग एंड ग्लोइंग। बाउंसिंग मीन्स जंपिंग, क्योंकि वो क्या करता था? वो आसपास उसके जंप करता था। एंड स्क्वीकिंग मतलब आवाज़ें निकालता था, ठीक है। एंड ग्लोइंग, और वो ग्लो करता था, मतलब उसको इस तरीके से बनाया गया था उसकी बॉडी को कि वो लाइट करता था। इवन विदाउट अ ग्लो, even without the glow, Robert could tell where it was and where Jimmy was by radar, right? So मतलब बिना लाइट के, ग्लो यहाँ पे मतलब है लाइट, बिना लाइट के। जैसे अभी अर्थ के ना होने पे, स्पेस में अर्थ के ना होने पे क्या हो गया था? क्रेटर में पूरा अंधेरा हो गया था, ठीक है। तो उसी तरीके से जब कभी भी बहुत से ऐसे टाइम हुए, या जब भी ऐसा होता था कि लाइट बिल्कुल भी नहीं रहती थी, तो भी रॉबर्ट को पता चल जाता था कि वो कहाँ है और जिमी कहाँ है, बाय रडार। सो रडार इट्स अ काइंड ऑफ मीडियम टू टेल द पोजीशन और प्लेस ऑफ समबडी, राइट? सो जिमी कुडंट गो रॉन्ग वाइल रॉबर्ट वॉज अराउंड, ठीक है। और जिमी कभी गलत जा ही नहीं सकता था, या जिमी के साथ कभी गलत हो ही नहीं सकता था जब तक कि कौन था उसके साथ? उसके आसपास रॉबर्ट रहता था, या रॉबर्ट के होने पर जिमी कुछ भी गलत नहीं कर सकता था, या उसके साथ कोई भी गलत नहीं हो सकता था। ट्रिपिंग हिम व्हेन ही वॉज टू नियर अ रॉक। ट्रिपिंग मतलब क्योंकि जब वो पत्थरों के आसपास होता था, कौन? जिमी, तो उसको कैच करता था, उसके पीछे पीछे जाके उसको कैच करता था। कौन कैच करता था? रॉबर्ट। तो ये रॉबर्ट का एक तरफ से लव एक्सप्रेस करने का या खेलने का उसके साथ तरीका होता था, कि जब भी वो जो जिमी है वो किसी पत्थरों के आसपास होता था, तो वो उसको पकड़ता था ताकि उसे चोट ना लगे। और जंपिंग ऑन हिम टू शो हाउ मच इट लव्ड हिम, या कई बार उसके ऊपर जंप भी करता था, ये दिखाने के लिए कि रॉबर्ट जो है वो जिमी से कितना प्यार करता है। और सर्कलिंग अराउंड एंड स्क्वीकिंग लो एंड स्कैर्ड वाइल जिमी hid behind a rock, right? When all the time Robert knew well enough where he was, right? और सर्कलिंग अराउंड, उसके चारों ओर घूमना, उसके चारों ओर घूमता भी रहता था, खेलता रहता था। एंड स्क्वीकिंग लो एंड स्कैड, ठीक है। और लो और डरे हुए, स्कैड मीन्स डरा हुआ, ठीक है। तो स्क्वीकिंग मतलब, और वो कई बार ऐसा भी होता था कि जब जिम्मी जानबूझ के मतलब हाइड कर लेता था अपने आप को, कहाँ पे? किसी पत्थर के पीछे। तो यहाँ ये रॉबर्ट क्या करता था? आवाज़ें निकालता था, ठीक है। किसमें? लो और स्कैड, और डरावने बिहेवियर या इन्वायरमेंट की वजह से, ठीक है। क्योंकि उसको डर लगता था कि जिमी कहाँ चला गया, कहाँ नहीं। तो उसको बस दिखाने के लिए, वो प्रिटेंड करने के लिए वो आवाज़ें निकालता था डर में, कि मैं बहुत डर गया हूँ, तुम जिमी तुम कहाँ हो, प्लीज़ सामने आ जाओ, इस तरीके से। व्हेन ऑल द टाइम रॉबर्ट न्यू, जबकि रॉबर्ट को ये पता होता था कि जिमी अभी कहाँ छुपा है या किस रॉक के पीछे छिप गया है, ठीक है। वंस जिमी हैड लेन स्टिल एंड लेन मतलब टू लाई डाउन, यहाँ पे लेन का मतलब है टू लाई डाउन, मतलब लेट जाना। एंड प्रिटेंडेड मतलब फेक, मतलब दिखावा करना या दिखावटी। तो एक बार की बात है कि जिमी क्या किया? जिमी लेट गया पूरी तरीके से ज़मीन पर, और वो प्रिटेंड करने लगा, मतलब दिखावटी में कुछ दिखाने लगा। सो लेट प्रोसीड फर्दर क्लास। ही वॉज हर्ट, और ये दिखाने लगा कि वो बहुत तकलीफ़ में है या उसको चोट लग गई है। एंड रॉबर्ट हैड साउंडेड द रेडियो अलार्म एंड पीपल फ्रॉम लूनर सिटी गॉट देयर इन अ हरी। और जैसे रॉबर्ट ने ये देखा कि जिमी जो है वो लेट गया है, उसको चोट लग गई है, तो तुरंत वो रेडियो अलार्म से जो भी आसपास के लोग थे उनको बुलाने
उसने उन लोगों को बुला लिया था। सो लूनर सिटी दैट मीन्स मून सिटी, राइट, गॉट देयर इन अ हरी, और तुरंत के तुरंत आसपास के लोग जो वहाँ लोग रहते थे वो तुरंत के तुरंत वहाँ पे पहुँच गए थे। किसको बचाने के लिए? जिमी को बचाने के लिए, ठीक है। बट ये सब जिमी ने सिर्फ ऐसे ही किया था, उसको चोट नहीं लगी थी, बट उसने ऐसे ही किया था। जिमी's father had let him near about the little trick and Jimmy never tried it again. So had let him hear का मतलब है to teach। तो जिमी के जो फादर थे उन्होंने इस लिटिल ट्रिक के बारे में उसे बताया था, ठीक है। अबाउट दैट लिटिल ट्रिक बताया था इन सेंस कि मतलब जब ये ट्रिक उसने किया था किसने? जिमी ने। तो उसके जिमी के जो फादर थे उन्होंने उसको डांट लगाई थी, उन्होंने उसको बताया था कि ऐसा करना अच्छा नहीं होता, दूसरों को परेशान करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। तब से जिमी ने ये ऐसी प्रिटेंशियस ट्रिक उसने कभी भी नहीं की, फिर दोबारा उसने पूरे लाइफ टाइम नहीं की। Just as he was remembering that, he heard his father's voice on his private wavelength. Wavelength means communication device. और जब वो सब ये बैठे बैठे या वहाँ पे उछलते कूदते ये सारी चीज़ें याद ही कर रहा था, तभी उसने अपने कम्युनिकेशन डिवाइस पे अपने फादर की वॉइस सुनी। जिमी कम बैक, आई हैव समथिंग टू टेल यू। तो और उसके फादर उधर से क्या बोल रहे थे कि जिमी यहाँ आ जाओ, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। तो इट वॉज लाइक कि जैसे हम फ़ोन से बात करते हैं, एक पर्सन कहीं और रहता है, दूसरा पर्सन कहीं और रहता है, तो वैसे ही उसके फादर ने दूसरे कहीं एंड से, उस लूनर सिटी के एंड से उसको क्या किया? कम्युनिकेट किया उसके प्राइवेट वेवलेंथ पे, और फिर उसे बोला कि तुम यहाँ जल्दी से आ जाओ, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। सो लेट प्रोसीड फर्दर क्लास। Jimmy was out of his space suit now and watched up, right? और जिमी क्या था? अपने स्पेस सूट को, क्योंकि अब वो वहाँ पे पहुँच चुका है, मान लो अपने जहाँ पे उसके पापा या मम्मी थे लेबॉर्ट्री में, तो वहाँ पे पहुँचने के बाद उसने अपनी क्या की? उसने अपने स्पेस सूट को रिमूव किया एंड वॉश्ड अप, राइट। और उसे यहाँ पे वॉश्ड अप का मतलब है टायर्ड अप, ठीक है। और वो बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गया था। You always had to wash up after coming in from coming from outside. तो और जब भी जिमी या रोबोट आते थे बाहर से तो उनको वॉशअप करना था। तो पर यहाँ पे वॉशअप का मतलब है टू क्लीन। यू ऑलवेज हैड टू वॉश अप आफ्टर कमिंग इन फ्रॉम आउटसाइड। फॉर एग्जांपल जैसे अभी आप देख सकते हो एनवायरनमेंट कोरोना की वजह से जो हो गया है कि आप जब भी बाहर जाइए और बाहर से आइए तो यू हैव टू वॉश योर हैंड और सैनिटाइज योर हैंड, देन फेस एज वेल एज योर फीट एंड ऑल दीज थिंग्स। सो वैसे वहाँ का भी रूल था कि फिर कमिंग फ्रॉम आउटसाइड, समवेयर फ्रॉम आउटसाइड, यू हैव टू वॉश योर wash your whole body, or you can say wash your some parts of your body, right? Even robot had to be sprayed, और रोबोट पे भी स्प्रे मारा जाता था, ठीक है। बट इट लव्ड इट, पर उसे वो अच्छा लगता था। इट स्टूड देयर फॉर ऑन ऑल फोर्स It stood there on all fours, its little foot, long body quivering and glowing just a tiny bit, right? तो वहाँ अपने चारों पैरों पे खड़ा हो जाता था और उसको स्प्रे कर दिया जाता था, ठीक है। इट्स लिटिल फूट, लॉन्ग बॉडी क्विवरिंग मीन्स शेकिंग, और उसकी जो बॉडी थी वो शेक करती रहती थी। एंड ग्लोइंग जस्ट अ टाइनी बिट, और थोड़ा थोड़ा वो उसमें ग्लो भी होता था, मतलब लाइट भी जलती रहती थी। एंड इट्स स्मॉल हेड विद नो माउथ, विद टू लार्ज ग्लास्ड इन आइज, एंड विद अ बम्प where the brain was, it squeaked until Mr. Anderson said, "Quiet, Robert." Right? सो अब उसके बारे में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है, किसके बारे में? रॉबर्ट के बारे में, जो कि मैकेनिकल या रोबोटिक डॉग था। एंड ग्लोइंग जस्ट अ टाइनी बिट एंड इट्स स्मॉल हेड, ठीक है, उसका जो सर था बहुत छोटा था और कोई माउथ नहीं था। विद नो माउथ मतलब वहाँ पे उसकी मुंह जैसी कोई चीज़ नहीं थी इस रोबोटिक डॉग में। विद टू लार्ज ग्लास्ड इन आइज, और आँखों में बड़े बड़े ग्लास लगे हुए थे। एंड विद अ बम्प मीन्स क्रैश और हर्ट वेयर द ब्रेन वॉज, और जहाँ पे ब्रेन था वहाँ पे कुछ हर्ट या क्रैश था। क्यों? क्योंकि अभी अभी ये बाहर से आ रहे थे, उछल कूद करके आ रहे थे, या भीड़
हो सकता है कहीं वो टकराए हो, ठीक है, या कोलाइड किया गया हुए हों किसी से, ठीक है. सो दैट इज़ वाई दे वर हैविंग इट इज़ हैविंग क्रैश और हर्ट where it was brain. It squeed means to make sound or voice. It was making sound until Mr. Anderson said, ठीक है. और वो तब तक बोलता रहता था जब तक कि मिस्टर एंडरसन ये ना बोल देते उससे कि क्वाइट रॉबर्ट, तब वो अपने आप क्वाइट हो जाता था. बिकॉज इट वॉज अ रोबोटिक डॉग एंड यू नो रोबोट acts or do their actions on instructions, right, by the human being or of the human being. So let's proceed further, class. Mr. Anderson was smiling. We have something for you, Jimmy. It is at the rocket station, but we will have it tomorrow after all the tests are over. I thought I should tell you now. So मिस्टर एंडरसन जो थे वो हंस रहे थे और उन्होंने जिमी से बोला कि हमारे पास कुछ है तुम्हें दिखाने के लिए. अभी तो फ़िलहाल वो रॉकेट स्टेशन पे है या रॉकेट स्टेशन में है क्योंकि उसकी कुछ टेस्ट हो रहे हैं, बट कल तक वो हमारे पास आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास पहुँच जाएगा. आई थॉट, और मुझे ऐसा लगा कि मुझे तुम्हें बताना चाहिए. फ्रॉम अर्थ डैड. तो वो बोलता है, जिमी बोलता है कि क्या अर्थ से, मतलब पृथ्वी से या अर्थ से ही आ रहा है ऐसा कुछ मेरे लिए. अ डॉग फ्रॉम अर्थ सन, अ रियल डॉग, अ स्कॉच टेरियर पपी. अब वो बोलते हैं, कौन, मिस्टर एंडरसन, कि हाँ एक डॉग अर्थ से तुम्हारे लिए मैंने मंगाया है या मैं मंगा रहा हूँ, जो कि एक रियल डॉग है, ठीक है. अ स्कॉच टेरियर पपी, विच इज़ अ स्कॉच टेरियर पपी. The first dog on the moon. Now he will be the first, or it will be the first dog on the moon. You won't need Robert anymore. और तुम्हें रॉबर्ट की आगे ज़रूरत नहीं पड़ेगी या नहीं है. We can't keep them both, you know, and some other boy or girl will have Robert. और हम दोनों को नहीं रख सकते कि रॉबर्ट को भी रख लें और रियल डॉग को भी रख लें. तो हम रियल डॉग हम रखेंगे तुम्हारे लिए, और बाकी जो रॉबर्ट है हम वो किसी दूसरे लड़के या लड़की को दे देंगे. ही seemed टू बी वेटिंग फॉर जिमी टू से समथिंग, देन ही सेड. और इतना कहने के बाद जो उसके फादर थे जिमी के, वो वेट कर रहे थे कि कौन कहे, जिमी कुछ ना कुछ आगे बोले. पर जिमी के फादर ने फिर कंटिन्यू किया बोलना. यू नो व्हाट अ डॉग इज़ जिमी. तो आगे बोलते हैं कि क्या तुम्हें पता है कि डॉग क्या होता है जिमी. इट्स अ रियल थिंग, ये रियल थिंग है, ठीक है. रॉबर्ट ओनली अ मैकेनिकल इमिटेशन एंड अ रोबोट मट, राइट. सो रॉबर्ट अब उसके बारे में बताते हैं कि क्या तुम्हें पता है कि डॉग क्या होता है जिमी, क्योंकि वो रियल थिंग है. जो डॉग मैं तुम्हारे लिए मंगा रहा हूँ वो एकदम रियल डॉग है. पर अगर तुम रॉबर्ट की बात करोगे जो तुम्हारे साथ अभी है, वो एक मैकेनिकल इमिटेशन है. इमिटेशन मतलब इमिटेट करना, आपने सुना होगा. टू इमिटेट समबडी मीन्स टू कॉपी समथिंग और टू कॉपी समवन, राइट. सो इमिटेशन का मतलब है यहाँ पे कॉपीड, क्योंकि वो मैकेनिकल कॉपीड था, मतलब वो रियल डॉग नहीं था, उसे कॉपी करके बनाया गया था. मतलब वो उसे एज अ मैकेनिकल टूल की तरह यूज़ किया जा रहा था या बनाया गया था, ठीक है. अ रोबोट मट मीन्स ऑफ मशीन, लाइक समथिंग ऑफ और बिल्ट बाय मशीन, ठीक है. सो वहाँ पे वो बोलते हैं कि रॉबर्ट जो है वो मैकेनिकल इमिटेशन है, मतलब मैकेनिकल कॉपीड है, और मशीन मैकेनिकल है या फुल ऑफ मशीन है, राइट. दैट्स हाउ इट गॉट हिज नेम. और इसी वजह से उसको ऐसा नाम मिला, और उसका नाम क्या था, रॉबर्ट, ठीक है. सो लेट प्रोसीड फर्दर, क्लास. So homework, students, you all have to write down the word meanings in your classwork copy and in the book too. Also read this lesson a little further, right. So what you have to do is you have to write down the word meanings in your classwork copy of this particular chapter, and in the book too, and in the book also you have to write down the meaning that like I have written in my book, right. So what you have to do is you have to read this lesson a little further, so that in the next video or in the next class when I will be teaching you, you will be understanding the story more clearly, right. So let's proceed further, class. So students, in our next class we will continue with the same lesson, that is a boy's best friend. Till then, take care and stay safe. Thank you, class.